Hey students, Assalamu alaikum. Good afternoon to one and all. Now, myself Sajida Sheikh. Today, I am going to explain you about 1.6 poem, 2.6 poem, that is Nose versus Eyes. Presented by myself. My name is on the screen. Students, this poem Nose versus Eyes has been written by William Cooper. Now let us see something about the introduction of the William Cooper. William Cooper was one of the most popular 18th century English poets and composers of hymns. Student ये 18th century के English poet हैं and he has also composed many hymns, that is song, musical poems in the form of a song. His poems deal with nature and everyday life. Student, like many like other poets, he is also a nature poet. That is, he has written poems, many poems he has written on nature and everyday life. He is aptly described by student Samuel T. Coleridge ने इनको describe किया है as the बेस्ट मॉडर्न पोएट ऑफ हिज टाइम्स, यानी 18th सेंचुरी के ये बेस्ट मॉडर्न पोएट कहलाते थे, ऐसा सैमुअल टी कॉलरिज ने कहा. Though he studied jurisprudence, he later admitted that he was not much inclined to the legal profession. लीगल प्रोफेशन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन इन्होंने पढ़ाई तो की है जूरिस्प्रूडेंस यानी जस्टिस के ऊपर पढ़ाई की है, इन्होंने जुडिशरी सिस्टम के ऊपर पढ़ाई की है, लेकिन इनका इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था. He has written, "Happy is the one who knows just as much of the law to make himself as a little merry now and then with the solemnity of the juridical proceedings." Students, he has told us, he has written in his book about the person, like happy is the man, happy is the one, हैप्पी वो शख्स रहेगा जो थोड़ा बहुत जो है हु विल बी लाइक नोइंग समथिंग अबाउट द लॉ, ओके, एंड देन विद द सोलेमनिटी ऑफ द ज्यूरिडिकल प्रोसीडिंग्स. मतलब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बोला गया है कि थिंग्स व्हाट इज शोन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फॉलोड ऑल टुगेदर. Some things are theoretically written and everything is not practically done in this judiciary system as well. Now let us know about the introduction of the poem, that is Nose versus Eyes. Nose versus Eyes is a satire on the judiciary system. Satire यानी एक comic poem है student, एक मजाकिया poem है. It also mocks at the stone blind justice in a humorous manner, emphasizing upon the lack of empathy and common sense. स्टूडेंट, ये पोएम में जो है बहुत ही मॉकिंग इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे, बहुत ही मॉकिंग जो है आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, हंसी मजाकिया तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट मिलेंगे, देखने के लिए मिलेंगे. यहाँ पे ये भी बताया गया है कि हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम में भी ब्लाइंड जस्टिस होता है. अंधाधुंध जो है वर्डिक्ट सुनाया जाता है बिना एम्पैथी किए, बिना उसको जो है हमदर्दी किए या अपनी बिना कॉमन सेंस यानी लॉजिक लगाए बिना यहाँ पर कोई भी जस्टिस सुनाया जाता है. एंड सेम मैनर में यहाँ पर हमें जो है हमारे पोएम नोज वर्सेस आइस में यहाँ पर बताया गया है. स्टूडेंट, व्हाट इज डन इन आवर डेली लाइफ, so it has been said in the form of a poem and in a mocking way. Let us see our first stanza. फर्स्ट स्टैंजा देखो स्टूडेंट, हम लोग मैं रीड भी करूँगी और उसके बाद जो है साइमल्टेनियसली आई विल एक्सप्लेन यू एज वेल. Between nose and eyes a strange contest arose. The spectacle set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. Student, I have also mentioned new words meaning, and I have highlighted the words with red color. You can see it and you can get to know about the new word meaning as well.
नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट स्टांजा की बिगनिंग होती है यहाँ से कि नोज और आईज में जो है यहाँ पे कॉन्टेस्ट अरोज होता है। स्ट्रेंज, एक अजीब सा एक इनमें जो है कॉन्टेस्ट अरोज होता है। अरोज यानी अरोज का मतलब होगा कि स्टार्ट होना, ठीक है, उरूज पर रहना। स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, द स्पेक्टिकल्स सेट देम अनहैप्पीली रॉन्ग, यानी स्पेक्टिकल्स के ऊपर ये लोग का जो है डिस्प्यूट चल रहा था, झगड़ा चल रहा था कि दोनों एक दूसरे से नाखुश थे कि नोज जो कह रहा था कि स्पेक्टिकल्स मुझे बिलोंग करते और आइज बोल रहा था कि नहीं वो मुझे बिलोंग करते। हकीकत में देखेंगे कि किसको बिलोंग करते हैं। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वॉज एज ऑल द वर्ल्ड नोज, पॉइंट जो था, जो मुद्दा जो था वो हम लोग अभी देखेंगे। टू विच द सेट स्पेक्टिकल्स आउट टू बिलोंग, यानी किसको वो स्पेक्टिकल्स जो है बिलोंग करते हैं, यानी किसको जो है किसकी वजह से हम लोग स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, नोज के लिए या आइज के लिए, है ना। लेट अस सी द सेकेंड स्टांजा। So Tongue was a lawyer and argued the cause with great deal of skill and a wig full of learning, while Chief Baron Yer sat to balance the laws, so famed for his talent in nicely discerning. Student, what happened now? यहाँ पर जो है इनका आर्ग्यूमेंट जो है स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ पर जो है when the matter came to the court, है ना, एक assumption है स्टूडेंट, दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन, दिस इज जस्ट अ फैंटेसी, यू कैन से दैट। सो यहाँ पर टंग को जो है लॉयर बनाया गया, यू नो एज you know very well, like tongue is the thing, tongue is an organ where we can say lie also, where we can say truth also, है ना। तो many times it happens with the lawyer also, sometimes they have to say truth, sometimes they have to manipulate the things, sometimes they have to keep the things or show the things as it is. so यहाँ पर टंग को जो है लॉयर बनाया गया, जबान को, एंड आर्ग्यूड द कॉज, और जो मुद्दा चिड़ा था, जो बहस हो रही थी, उसके ऊपर वो लोग अभी आर्ग्यूमेंट चालू होने वाला था। तो यहाँ पर जो है और एक पर्सन बताया गया है जो कि है चीफ बैरन। चीफ बैरन जो है इसको बनाया गया, बैरन यानी पावरफुल पर्सन, एंड चीफ बैरन यहाँ पे देखो इमेज के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि इमेज में हमें एक पर्सन नज़र आ रहा है जिसने वीग लगाई है वाइट कलर की। तो ये वाइट कलर की वीग जो लगाता है उसको जज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जज किसे बनाया गया था, यर को, यानी यर्स को, यू नो वेरी वेल, है ना। तो यहाँ पे ईयर को इसलिए बनाया गया था कि ये सही तरीके से ये बैलेंस कर सकेगा लॉज को, जो भी सही व्हाट टू से लाइक सही जो फैसला रहेगा वो सही पर्सन के हक में सुनाया जाएगा। सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, और ये जो है फेमस है अपने टैलेंट में, और एक अच्छा जजमेंट देने के लिए भी जज को जो है चुना गया है, वो है ईयर। Student, I have mentioned the new word meaning in the down to your stanza. You can see to it. आगे बढ़ते हैं अभी थर्ड स्टैंजा की तरफ। हमारा थर्ड स्टैंजा देखो अभी, द रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन एज वेल। इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप, ही सेड, will undoubtedly find that the nose has had spectacles always in wear, which amounts to possession time out of mind. यहाँ पर बोला गया इन बिहाफ ऑफ द नोज, नाउ द टंग, द लॉयर, वकील ने वकालत स्टार्ट कर दी है, टंग ने अपनी वकालत नोज के फेवर में स्टार्ट कर दी है। अब नोज के बिहाफ पे क्या बोल रहा है देखो, एंड योर लॉर्डशिप, यानी जब कोर्ट में जज के सामने जब पेश आते हैं या बोलते हैं, बात करते हैं लॉयर्स लोग, तो वहाँ पे माई लॉर्ड बोला जाता है। तो यहाँ पर योर लॉर्डशिप से स्टार्ट हुआ है। देखो व्हाट ही इज टेलिंग, ही सेड विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज हैड स्पेक्टिकल्स ऑलवेज इन वेयर, मतलब मुझे लगता है कि नोज ही हमेशा जो है वेयर करता है स्पेक्टिकल्स, विच अमाउंट्स टू का मतलब होता है बिकम्स, होना, है ना। बिकम्स पोजेशन यानी मिल्कियत, जिसकी जो मिल्कियत रहती है ना, माली, मतलब जो उसका ओनर रहता है, पजेस करता है ना, पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड।
मतलब इसमें कोई दो राहें नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है आईज को बिलोंग करता है या नोज को बिलोंग करता है, ये बिल्कुल से नोज को ही बिलोंग करता है चश्मा, स्पेक्टिकल्स। ओके, यहाँ पे देखो मैंने इमेज भी आपको जो है नज़र आएगी आपको इमेज। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ स्टैंजा। सी स्टूडेंट्स, इमेज ऑल्सो देखो, इमेज भी देखो और जो है रीडिंग भी देखो एंड द एक्सप्लेनेशन एज वेल। Then holding the spectacles up to the coat, your lordship observes they are made with a straddle as wide as the ridge of the nose is, in short, designed to sit close to it just like a saddle. Very interesting thing, student. He has given us the example, like what it is telling, what the lawyer is telling, what the tongue is telling. देखो, टंग बोल रहा है कि जो है होल्डिंग द स्पेक्टिकल्स टू द कोट, स्पेक्टिकल्स को लेकर वो बता रहा है कि योर लॉर्डशिप ऑब्जर्व करो, उसको देखो, ध्यान से देखो, एकदम गौर से देखो कि जो है दे आर मेड विद अ स्ट्रैडल। स्ट्रैडल का मतलब होता है जो हमारी नोज के ऊपर चश्मे का जो बीच का जो ट्रायंगल टाइप में रहता है ना, जिससे अपना चश्मा बैठता है नाक के ऊपर एकदम फिक्स, उसको बोलते हैं स्ट्रैडल। ठीक है, एज वाइड एज द रिच ऑफ द नोज, नोज के जो साइड में जो ये सॉरी जो है स्पेक्स की साइड में जो देखो स्ट्रैडल के बाजू में जो रिजेस रहते हैं, एजेस रहते हैं, मतलब कॉर्नर्स, वो उसको फिक्स बैठने के लिए, उसको फिक्स बैठाने के लिए ये स्ट्रैडल इस्तेमाल होता है। इन शॉर्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, जब कभी हम लोग घुड़सवारी करते हैं, जब हम लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उसके, तो घुड़सवारी के पहले हम लोग जो है सैडल रखते हैं, सैडल हॉर्स पे रखते हैं, सीट रखते हैं, ताकि हम लोग कंफर्टेबली जो है या फिक्स हो जाए, हम लोग अपने आप को फिक्स कर लें उस हॉर्स पे। तो सेम लाइक दैट वे ओनली स्टूडेंट, इट इज सेड दैट straddle has been kept with the specs, it has been made with the specs for the purpose to get fixed for the nose। तो यानी यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर किसके हक में फैसला हो रहा है, यहाँ पर फैसला हो रहा है नोज के हक में, है ना। See the next stanza, fifth stanza now, see here, again would your lordship a moment suppose करो, ठीक है, it is a case that has happened and maybe again that the visage or countenance had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then। Student, what it is said now, कि again it is like again he is drawing his attention, again he is drawing his attention towards the again he is drawing his attention, uh, wait a second, again he is drawing his attention towards the law, this towards the what to say like lord, एंड ही इज़ टेलिंग, सपोज करो कि अगर वाइसेज और काउंटेनेंस, दैट द वाइसेज और काउंटेनेंस यानी फेस पे, देखो मैंने इमेज के ज़रिए आपको बताया है कि अगर इमेज में देखो दिख नज़र आ रहा है कि इमेज में जो है फेस है, मतलब फेस है, माउथ है, आईज़ है, लेकिन नोज़ नहीं है। अगर नोज़ नहीं रहेगी फेस पे, चेहरे पे अगर नाक नहीं रहेगी, तो स्पेक्टिकल्स कौन पहनेगा? प्रे हु वुड और हु कुड वेयर स्पेक्टिकल्स देन, है ना, इट इज सेड लाइक दैट। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि स्पेक्टिकल्स आर टोटली मेड फॉर द नोज। Now in the sixth stanza it has been said like, on the whole it appears and my argument shows with the reasoning the court will never condemn that the spectacles plainly were made for the nose and the nose was as plainly intended for them। On the whole it appears, it is said like student, कि अगर पूरा मिला के अगर आर्ग्यूमेंट को देखेंगे, काउंट करेंगे, पूरे आर्ग्यूमेंट को काउंट करेंगे या पूरे पॉइंट्स को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रीज़न है। विद द रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम, कंडेम यानी कोर्ट में मेरी बात की जो है डिसअप्रूवल नहीं होगा,
मेरी बात को नकारा नहीं जाएगा, मेरी बात को डिसअग्री नहीं किया जाएगा, बिकॉज सारे मैंने रीजंस दिए हैं, सारे मैंने एग्जांपल्स दे के समझाया है कि ये चश्मा जो है सीधे तरीके से, प्लेनली, साफ तरीके से जो है नोज को बिलोंग करता है। दैट द स्पेक्टिकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज। स्पेक्टिकल्स जो है नोज के लिए ही बना है, और नोज जो है उसके लिए ही मेंट करती। इंटेंडेड का मतलब होता है मेंट करना, मेंट यानी उसके लिए ही नोज जो है बनी है, स्पेक्टिकल्स के लिए। नाउ द फर्दर स्टैंजा देखो स्टूडेंट, 7th स्टैंजा में वी विल सी लाइक what it is said. Then shifting his side as a lawyer knows how, he pleaded again in behalf of the eyes. But what were his arguments? Few people know. For the court did not think they were equally wise. शिफ्टिंग इज साइड टू द, नाउ लॉयर ने जो है ना अपनी साइड को जो है शिफ्ट कर दिया, पहले नोज के फेवर में बोल रहा था, अभी आइज के फेवर में बोल रहा है, और ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, अभी आइज के फेवर में वो बोल रहा है। लेकिन बहुत कम लोग को जो है उसके आर्ग्यूमेंट के बारे में पता है, बट वॉट वर हिज आर्ग्यूमेंट्स फ्यू पीपल नो, बहुत कम लोग को उसके आर्ग्यूमेंट के बारे में पता है। तो फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, और जितने भी उसने जो है आइस के फेवर में बताया है, तो उससे कोर्ट में जो है व्हाट टू से, चीफ बैरन जो है, यर जो है, जज जो है, उससे प्लीज नहीं हो रहे, उससे मुतमईन नहीं हो रहे, उससे जो है राजी नहीं हो रहे, और उसके जो है आर्ग्यूमेंट थे आइस के लिए, तो उसमें वजन नहीं नजर आ रहा है। तो व्हाट इन द नेक्स्ट आंसर व्हाट दे आर सेइंग देखो, so his lordship decreed with a grave solemn tone, decisive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on, by daylight or candlelight, eyes should be shut. क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट यहाँ पर 8th स्टैंजा में देखो, लॉर्डशिप को बोल रहे हैं अगेन द ईयर, अगेन द टंग, सॉरी, लॉयर जो है वापस से बोल रहा है कि लॉर्डशिप जो है अपना फैसला सुना दो, अभी डिक्रीट कर दो, डिक्रीट यानी गेव द वर्डिक, अभी लॉर्डशिप ने जो है, जज ने जो है अपना फैसला सुनाया, विद अ ग्रेव सोलेम टोन, विद अ ग्रेव सोलेम टोन यानी एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से, एकदम फॉर्मल तरीके से, डिसिसिव एंड क्लियर, डिसिसिव यानी कोई गुंजाइश ही नहीं, अभी कोई दो राय नहीं है, क्लियर दैट इज साफ तरीके से, है ना, विदाउट वन इफ और बट, बिना अगर मगर के यहाँ पर फैसला सुना दिया गया। क्या बोला गया है देखो, दैट whenever the nose put his spectacles on, जब कभी नोज अपनी स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा पहनेगा, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट यानी दिन में या रात में, तो आइज का क्या काम है, आइज को क्या करना है, आइज शुड बी शट। देखो आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, इमेज के ज़रिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और समझा भी रही हूँ, तो आप लोग गौर करें उस इमेज पे कि जब कभी नोज़ ने जो है स्पेक्टिकल्स को पहनना है, चश्मे को पहनना है, तो आइज़ ने अपना क्या काम करना है, आइज़ ने सिर्फ अपनी आंखें बंद रखनी है डे लाइट या कैंडल लाइट पे। सो दिस इज़ अ वेरी स्टूडेंट, दिस इज़ अ पोएम वेयर मॉकिंग वे में बताया गया है कि हाउ आर जुडिशरी सिस्टम वर्क्स, ठीक है, मजाकिया तरीके से, ह्यूमरस वे में, ह्यूमरस टोन में, इट हैज़ बिन described that how our judiciary system works. The judges give their blind faith, like blind तरीके से जो justice दी जाती है, it has been said in this poem. It is only just to like make ourselves like what to say, टू नो द ट्रुथ, ओके। यहाँ पर जो है सही को जो है गलत बताया गया है, और जो है उस सामने वाले को सप्रेस किया गया है, विच इज़ इन रियलिटी एग्जिस्ट, यानी हमको सबको पता है, पूरी दुनिया को ये पता है कि चश्मा जो है आँखों के लिए ही बनता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि आँखों के लिए नहीं, नोज़ इसकी जो है इसको पजेस करता है, चश्मे को, ठीक है। Thank you everyone. Do like and subscribe my channel. Thank you. और वो तुम्हारा वो उसको बंद करो करके, बीच में मैसेज आ गए ना अभी उसमें, पागल आदमी को बोलेंगे ना तो वायरिंग जोड़ेंगे, टीवी बंद कर दी तो ना तूने।
अबे चुप।